انتظار کی گھڑیاں ختم، کرکٹ کا عالمی میلہ 4 برس کے بعد آج بھارت میں سجنے کو تیار۔ دنیا کی 10 بہترین ٹیمیں چمچماتی ٹرافی حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کریں گی۔ ایونٹ کی 10 ٹیموں کو ایک دوسرے سے کھیلنا ہوگا، جس میں سے 4 ابتدائی پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمیں سیمی فائنل میں جگہ بنائیں گی۔ ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ آج دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور رنرز اپ نیوزی لینڈ کے درمیان بھارت کے شہر احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔ عثمان ڈار کا پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان، کہا 9 مئی کے حملوں کا مقصد فوج پر دباؤ ڈال کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عہدے سے ہٹانا تھا۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف چارج شیٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا منصوبہ زمان پاس میں بنایا گیا۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس، نجکاری کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق۔ اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے جاری مختلف اقدامات، اصلاحاتی عمل میں تعطل اور سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ملکی معیشت کی بحالی و ترقی کے لیے پاک فوج کی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے اہداف کے حصول کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اقدامات جاری رکھ کر ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کی اہمیت پر تاکید کیا ہے۔ بلوچستان میں افغان سرحد کے قریب چمن کراسنگ پر تعینات افغان سپاہیوں کی فائرنگ، بچے سمیت 2 پاکستانی شہری بھی شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق افغان سپاہیوں نے پاکستان سے افغانستان داخل ہونے والے پیدل افراد پر بلا اشتعال اندھا دھند فائرنگ کی۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا اور معصوم افراد کی موجودگی میں جوابی فائرنگ نہیں کی، جس کا مقصد بڑے جانی نقصان سے بچنا تھا۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے کہا ہے کہ صوبے میں ہونے والی دہشت گرد حملوں میں 75% خودکش حملہ آوروں کا تعلق افغانستان سے تھا۔ ایک انٹرویو میں اختر حیات خان نے کہا کہ خودکش حملہ آوروں کے فنگر پرنٹ سے ان کے افغان شہری ہونے کا پتہ چلا۔ علی مسجد، باڑہ، ہنگو، باجوڑ اور پولیس لائنز کے خودکش حملہ آور بھی افغانی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھتے میں ملوث مقامی اور افغانی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان کا افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ طالبان حکومت کا یہ رد عمل نگراں حکومت کی جانب سے پاکستان کے افغان شہریوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کا الٹیمیٹم دیے جانے کے ایک دن بعد وزارت تجارت میں سامنے آیا تھا۔ وزارت تجارت نے افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت پاکستان کی 212 اشیاء افغانستان لے جانے پر پابندی لگا دی۔ 17 اقسام کا کپڑا، تمام اقسام کی گاڑیوں کے ٹائرز، چائے کی پتی، کاسمیٹکس اور ٹوائلٹ میں استعمال کی جانے والی درجنوں اقسام کی اشیاء پر پابندی عائد۔ نیٹس، خشک اور تازہ پھل، ہوم اپلیکیشنز جن میں فریج، ریفریجریٹر، ایئر کنڈیشنر، جوسر، مکسر، بلینڈر بھی اس اشیاء میں شامل ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف انتقام لینے نہیں بلکہ ملک کو دوبارہ خوشحال کرنے پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے لاہور میں اپنے انتخابی حلقے کا دورہ کیا۔ شہباز شریف نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے دور میں پاکستان میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔
نواز شریف کو اقتدار سے علیحدہ نہیں کیا گیا بلکہ عوام کو خوشحالی سے دور کر کے ترقی کے سفر سے محروم کیا گیا ہے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ قیمت میں مزید کمی کے بعد ڈالر 2 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے سستا، ڈالر کی قیمت 283 روپے 68 پیسے ہو گئی۔ سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز، 100 انڈیکس میں 226 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس 39,305 پوائنٹس پر آ گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے۔ قیمت 5.5% سے زائد گر گئی۔ برطانوی خام تیل برنٹ آئل کی قیمت کم ہو کر $85.81 فی بیرل پر آ گئی، جبکہ WTI کی قیمت کم ہو کر $84.22 فی بیرل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی نہ کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائر کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستانی فٹ بال ٹیم میں عثمان علی، سلیمان الحق، یوسف بٹ، مامون موسیٰ خان، محب اللہ سہیل خان شامل ہیں۔ جنید شاہ، علی خان نیازی، راؤ عمر حیات، عبداللہ اقبال، عیسیٰ سلیمان، ہارون حامد، رئیس نبی، ولید خان، محمد وحید، یوسف فرید خان، عبدالصمد اور شائق بھی شامل ہوں گے۔ آج 5 اکتوبر وہ دن ہے جسے پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے جو قوم کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ جب کوئی استاد محترم کسی طالب علم کو الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا سکھاتے ہیں تو ان کے شاگرد کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ آج کے دن بچے اپنے اساتذہ کو تحائف اور تہنیتی کارڈ پیش کرتے اور پیغامات بھیجتے ہیں۔ اس روایات نے استاد اور شاگرد کے خوبصورت رشتے میں نئے احساسات بھی اجاگر کیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کا آغاز آج سے بھارت میں ہوگا۔ ون ڈے کرکٹ پر حکمرانی کے لیے 10 ٹیمیں پنجہ آزمائی کریں گی۔ افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ گزشتہ ورلڈ کپ کی فائنلسٹ ٹیمیں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے بھارت کے شہر احمد آباد کے میدان میں اتریں گی۔ دونوں ٹیموں کے ون ڈے کے باہمی ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو انگلش ٹیم کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 95 ون ڈے میچز کھیلے گئے ہیں۔ 45 میں انگلینڈ نے کامیابی حاصل کی جبکہ 44 میں بلیک کیپس نے میدان مارا ہے۔ 4 میچز بغیر نتیجہ اور 2 میچز برابر رہے۔ ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں 10 بار آمنے سامنے آئی اور دونوں نے 5-5 میچز جیتے ہیں۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں میں ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو کسی بھی وقت میچ کا نقشہ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انگلش ٹیم کے اوپننگ بلے باز جونی پیرسٹو کیوی باؤلر کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کے ڈیون کانوے، کین ویلسم اور ڈیرل میچل کیوی ٹیم کی بیٹنگ میں اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹیم ساؤتھی اور
टेरिनेट बोल्ट इंग्लिश बल्लेबाजों की विकेटें उड़ाएंगे। मेगा इवेंट के आगाज से कबल तमाम टीमों के कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कैप्टन्स डे के मौके पर हैदराबाद से अहमदाबाद खसूसी तैयारी के जरिए पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक साथ एंट्री दी। उस्मान डार ने कहा है कि 9 मई के वाकयात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत जमान पार्क में की गई। उस्मान डार ने निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तनसेबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई थी। हसास तनसेबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी थी। उस्मान बुजदार ने कहा कि अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। उस्मान डार का मजीद कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया। मुल्क भर से जमान पार्क के बाहर वर्कर्स इकट्ठे करके जहन साजी भी की गई। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पार्क में जो कुछ हुआ इसी जहन साजी का नतीजा था। जिस तरह अदारों पर हमले हुए इसके बाद पीटीआई की बुनियादें हिल गई हैं। उस्मान डार ने कहा कि 9 मई के सानिये की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। 9 मई एक स्याह धब्बा है जिसे ढलने में वक्त लगेगा। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानियों को सपोर्ट किया। पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई है। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर बना। वजारत तिजारत ने अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत पाकिस्तान की 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अशिया पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसका वजारत तिजारत ने SRO नंबर भी जारी कर दिया है। अशिया की अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाने की इजाजत नहीं होगी। SRO नंबर के मुताबिक 17 इकसाम का कपड़ा, तमाम इकसाम की गाड़ियों के टायर्स, चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों इकसाम की अशिया पर पाबंदी की गई है। इसी तरह नेट्स, खुश्क और ताजा फल, होम अप्लायंसेस जिनमें फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, जूसर, मिक्सर, ब्लेंडर शामिल है, उन पर भी अफगानिस्तान ले जाने की पाबंदी लगा दी गई है। सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के छठे इजलास में निजकारी के अमल को तेज करने पर इत्तेफाक किया गया है। इजलास के एलामिये के मुताबिक सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्क में सरमाकारी के फरोग के लिए जारी मुख्तलिफ इकदाम का जायजा लिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, उबूरी वफाकी काबीना के अरकान ने शिरकत की। सूबों के वज़रा आला और मुतल्लिका आला हुक्काम ने भी इजलास में शिरकत की है। शुरा को सरमाकारी के फरोग और कारोबारी सहूलियात की फराहमी के लिए उठाए गए इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में सरमाकारी इस्तिलाहाती अमल में तातुल और सरकारी अदारों की निजकारी के अमल का भी जायजा लिया गया। खजाने को मजीद नुकसान से बचाने के लिए निजकारी के अमल को तेज करने पर इत्तेफाक हुआ। एलामिये के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का इयादा किया है। कमेटी ने अहदाफ के हसूल के लिए उठाए गए इकदाम पर इत्मीनान का भी इजहार किया। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने कहा है कि सूबे में होने वाले देश खुदकुश हमलों में 75% खुदकुश हमला आवरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक इंटरव्यू में अख्तर हयात खान ने कहा कि खुदकुश हमला आवरों के फिंगरप्रिंट से पता चलता है, उनके अफगान शहरी होने का सबूत मिलता है। अली मस्जिद, बाड़ा, हंगू, बाजोड़ और पुलिस लाइंस के खुदकुश हमला आवर भी अफगानी थे।
انہوں نے کہا کہ بھتے میں ملوث مقامی اور افغانی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے اقدامات کی وجہ سے بھتے کی کالز میں کمی آئی۔ بھتے کی کالز میں افغان سمز استعمال کی جاتی ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے مزید بتایا کہ رواں سال بھتے کے 76 کیسز رپورٹ ہوئے، 39 کیسز کا سراغ لگایا گیا۔ چترال، مہمند اور باجوڑ سے بھتہ خور پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک گروہ سے گٹھ جوڑ میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ مجرموں والا سلوک کیا گیا۔ دونوں پولیس اہلکاروں پر مقدمات درج کر کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نظام اضلاع میں سی ایچ ڈی کے دفاتر قائم کر کے ایس پی رینک کے افسران بٹھا دیے گئے ہیں۔ بشرا بی بی کی اپنے شوہر کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے لیے دائر درخواست پر سماعت اگلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بشرا بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ بشرا بی بی کے وکیل لطیف کھوسا نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہاں نماز بھی بامشکل ادا کی جا سکتی ہے۔ وکیل لطیف کھوسا نے مزید کہا کہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ جو بھی صدر یا وزیر اعظم بنے وہ بعد میں اڈیالہ اور اٹک جیل کا مہمان بنتا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ جو گنجائش اور جو کچھ عدالت کر سکتی ہے اس پر میں آرڈر کر دوں گا۔ بعد ازاں عدالت نے فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ آج 5 اکتوبر ہے، وہ دن جسے پوری دنیا میں ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے جو قوم کے نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ جب کوئی استاد محترم کسی طالب علم کو الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ لکھنا اور پڑھنا سکھاتے ہیں تو ان کے شاگرد کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر تعلیم کا سلسلہ مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔ مختلف اساتذہ بچے کی شخصیت کو نکھارنے اور سنوارنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ گویا وہ ایک نابلد بچے کو انسان بنا دیتے ہیں۔ پھر ہم انہی کی بدولت تعلیم یافتہ کہلانے لگتے ہیں۔ یہ اساتذہ کرام ہی ہیں جن کی بدولت تعلیم و تربیت کے مینار روشن ہیں۔ تو پھر جب ان میناروں کی روشنی میں چل کر کوئی کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے تو بھلا کیوں کر اپنے اساتذہ کو فراموش کر سکتا ہے۔ ٹیچرز ڈے پر بچے اپنے اساتذہ کو تحائف اور تہنیتی کارڈ پیش کرتے اور پیغامات بھیجتے ہیں۔ اس روایات نے استاد اور شاگرد کے خوبصورت رشتے میں نئے احساسات کو اجاگر کیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نے کہا ہے کہ کسی بھی معاشرے کو پروان چڑھانے میں ٹیچرز کی کلیدی حیثیت ہوتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے سب سے بڑے اور بہترین معلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے نور سے جہالت کے اندھیرے ختم کیے۔ محسن نقوی کا اساتذہ کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہنا تھا، استاد اپنے شاگردوں میں لا علمی کے اندھیروں کو مٹا کر علم کا نور بانٹتا ہے۔ اساتذہ قوم کے محسن اور ہمارا افتخار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس مقام پر ہوں اس میں میرے اساتذہ کی تربیت اور محنت شامل ہے۔ بہترین مستقبل کے فروغ کے لیے اساتذہ کی انتھک محنتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے اور اس کی قیمت میں 5.5% سے زائد بھی گر گئی۔ برطانوی خام تیل بیرنٹ آئل کی قیمت کم ہو کر $85.81 فی بیرل پر آ گئی ہے، جبکہ WTI کی قیمت کم ہو کر $84.22 فی بیرل ہو گئی۔ خام تیل کی قیمت میں کمی عالمی معیشت کی سست روی اور کم طلب کے خدشات کی وجہ سے ہے۔ دوسری جانب اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں مزید کمی نہ کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ ماہرین نے خیال ظاہر کیا کہ عالمی منڈی میں یہ رجحان جاری رہا تو پاکستان میں فی لیٹر قیمت میں واضح کمی ہو سکتی ہے۔
جنوبی وزیرستان میں ملک کی دفاع پر معمور پاک فوج کے اہلکار حوالدار احمد حسین شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز۔ آبائی قبرستان مینا ضلع مالاکنڈ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاک فوج میں حوالدار کے رینک پر خدمات انجام دینے والے احمد حسین وزیرستان میں وطن کے دشمنوں کے خلاف جوان مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ان کے جستے خاکی کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ حوالدار احمد حسین کو نماز جنازہ کے بعد ان کے آبائی علاقہ مینا ضلع مالاکنڈ میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ شہید کی نماز جنازہ میں فوجی و سول حکام کے علاوہ عمائدین علاقہ نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ حسین میرا بھائی تھا، وہ اپنے ملک کے لیے شہید ہوا ہے، اور میں بھی انشاءاللہ اگر ہو جاؤں تو میں بھی اپنے وطن پہ قربان ہو جاؤں گا، اور بھائی تھے تو اور بھی قربان ہو جائے گی، لیکن دو بھائی تھے اور ایک شہید ہو گیا، اور بس میں بھی شاید کوئی مل جائے تو میں بھی قربان بھی نہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستان کا افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ ہم پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان حکومت کا یہ رد عمل نگراں حکومت کی جانب سے پاکستان کے افغان شہریوں کو الٹیمیٹم دیے جانے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ بغیر دستاویزات کے رہ رہے تمام افغان شہریوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایات کی جاتی ہیں، ورنہ قید ہوگی یا انہیں ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ مذکورہ بالا فیصلہ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی سربراہی میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جس میں آرمی چیف سمیت دیگر نے شرکت کی۔ حکومت کے فیصلے کے مطابق حکام 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد تارکین وطن کی غیر قانونی جائیدادوں اور کاروباروں کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن شروع کریں گے۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ قیمت میں مزید کمی کے بعد ڈالر 2 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے سستا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 283 روپے 68 پیسے ہو گئی ہے۔ امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی کے بعد روپے کی قدر میں مزید بہتری آ گئی۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز ہوا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 226 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس 47,305 پوائنٹس پر ہے۔ خبریں اور بھی بلیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ تحصیل غازی کے نواحی گاؤں سری کوٹ میں اربوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے واٹر سپلائی اسکیم ناکام ہو گئی ہے۔ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ 2 ہفتے پانی نہیں آتا، پائپ لائن جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود تحصیل رپورٹر محمد علی مشوانی سے۔ جی محمد علی، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ میں اس وقت موجود ہوں سری کوٹ میں۔ اربوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا واٹر سپلائی اسکیم ناکارہ۔ واٹر سپلائی اسکیم جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں لوگوں کو پانی میسر نہیں ہے، 2 مہینے یہاں لوگوں کو پانی نہیں ملتا۔ دور دراز سے لوگ سروں اور گدوں پر پانی لانے پر مجبور ہے۔ جو پانی آتا ہے وہ پیپوں میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے، جن کی وجہ سے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ یہاں کے عوام نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سریکوٹ واٹر سپلائی اسکیم کو ٹھیک کیا جائے اور ہمیں پانی کی سہولت میسر کیا جائے، کیونکہ یہ واٹر سپلائی اسکیم اربوں روپے سے بنایا گیا ہے، جو کہ یہاں کے منتخب نمائندے اور
आगे बढ़े, आपको बताएं कि सियालकोट थाना रंगपुरा के इलाके में साबिका रंजिश पर 2 अफराद की एक दूसरे पर फायरिंग। दोनों ही मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने वाकये की तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया है। थाना रंगपुरा के इलाके तिलवाड़ा मुगला के रिहायशी अली मुकद्दर और नदीम बेग के दरमियान अरसा दराज से साबिक रंजिश चली आ रही थी, जिसकी बिना पर दोनों के दरमियान दोबारा मामूली तल्ख कलामी हुई। तैश में आकर दोनों ने एक दूसरे पर अपने अपने पिस्टल से फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गोलियां लगने से दोनों ही मौके पर हलाक हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दोनों मकतूल की उम्रें 25 से 30 साल के करीब है। कसूर में पुलिस और लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। एक रात में 54 बिजली चोर गिरफ्तार कर लिए गए। डीपीओ कसूर के मुताबिक गुज़श्ता एक माह में 2171 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। 1000 से ज्यादा अफराद को जेल भी भेजा गया है, जबकि 918 अफराद के कबल गिरफ्तारी जमानत भी करवा रखी है। 200 से ज्यादा मुलजमान का चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करवा दिया गया है। कंडियारी में पुलिस ने छापा मारकर 12,000 लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली है। पीरो नंबल थाने की हदूद में कार्रवाई की गई। डीएसपी खपरो अब्दुल सत्तार अजन, एसएचओ पीरो नमल मुनीर अहमद जतोई, इंचार्ज कंडियारी सईद अहमद जमाली ने एसएसपी सांगड़ के हुक्म पर ऑपरेशन करते हुए एक मुलजिम विकी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि मानसहरा में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट साल 2014 से लेकर अब तक की शानदार कामयाबियों की आलमी इतराफ की वजह से वक्तन फवक्तन सऊदी अरब से वफूद महकमा जंगलात की काविशों और काम को देखने के लिए पाकिस्तान आए। आज भी सऊदी अरब के एक वफ्द ने खैबर पख्तूनख्वा हजारन डिवीजन एबटाबाद का दौरा किया। उस मौके पर किफायतुल्लाह बलोच चीफ कंजर्वेटिव हजारा डिवीजन ने मेहमानों को खुशामदीद कहा, जिसके बाद मोहम्मद यूसुफ खान डीएफओ हजारा ने कुदरती वसाइल के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन भी दी। वफ्द ने प्लांटेशन की नर्सरियों में तैयार होने वाले पौधों को देखकर खुशी का इजहार किया। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहम्मद इकबाल का कश्मीर रोड, लारी अड्डा, कोटला बहराम चौक और गोहदपुर रोड पर तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। दुकानों के बाहर पुख्ता तजावजात को मौके पर ही मसमार कर दिया गया। रोड पर गाड़ियां पार्क करने की पदाश में शोरूम्स और वर्कशॉप्स को सरे बमहर कर दिया गया। फुटपाथ पर रखा सामान जब्त कर लिया गया। मजामत पर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि कश्मीर रोड को हर किस्म की तजावजात से पाक किया जाएगा। कश्मीर रोड पर बैंक और कमर्शियल अदारों के सामने खुद साख्ता पार्किंग स्टैंड्स, गाड़ियों के शोरूम्स और रोड पर वर्कशॉप्स की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल वाक़ई होता है, जिससे शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, दुकानदार अपने कारोबार को अपनी दुकानों के अंदर की हद तक महदूद रखें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त तादीबी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। दुनिया भर की तरह कोट अद्दू में भी टीचर्स डे के मौके पर मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में तकरीबात का सिलसिला जारी है। तलबा और तालिबात की जानिब से अपने उसातिज़ा को तहाइफ भी दिए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हमजा, बताइएगा यहाँ पर कैसे मनाया जा रहा है टीचर्स डे?
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी 5 अक्टूबर टीचर डे जो है वो मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में जो है तकरीबात का सिलसिला वो भी जारी है, और इसी के साथ साथ तलबा व तलबात की जानिब से जो है असातिज़ा को जो है वो मुख्तलिफ तोहफे तोहफ़ जो है वो भी पेश किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स कोटद्दू में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है टीचर डे के हवाले से स्टूडेंट्स की जानिब से जो है एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें जो है केक भी काटा गया। मेरे साथ इस वक्त इदारा आज़ा के प्रिंसिपल जुबैर अहमद सदीकी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, 5 अक्टूबर टीचर डे है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे इदारे में भी टीचर्स डे मनाया जा रहा है। इससे असातिज़ा और बच्चों का ताल्लुक मजबूत होगा और बड़ी खुशाइन बात असातिज़ा के लिए बच्चों के दिल में अकीदत बढ़ेगी। एक जो गैप हो गया है वो इंशाअल्लाह फिल हो जाएगा और असातिज़ा बच्चों की भी शफकत करेंगे और बच्चे अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहेंगे टीचर डे के हवाले से? केक भी काटा है, तोहफ़े भी दिए। देखिए, टीचर डे मनाना चाहिए ज़रूरी स्टाफ पर भी और मुल्क स्टाफ में भी। इसे एक दिन के लिए मखसूस नहीं करना चाहिए, इसे सारा साल मनाना चाहिए, क्योंकि जो उस्ताद होता है उसका एक दिन नहीं है, उसका पूरा साल होता है। एक उस्ताद जो है वो कौम का मामार होता है, वो इंजीनियर बनाता है, वो सब कुछ तरक्की में मेन किरदार ही उस्ताद निभाता है। लिहाजा हमें ऐसे इवेंट उजागर करने चाहिए जिनसे बच्चों में उस्तादा की इज्जत एहतराम में इजाफा हो। जी बिल्कुल, मुल्क की सतह पर जो है इस दिन को मनाना चाहिए, और उस्ताद के लिए जो है एक दिन जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट में भी सलाम टीचर्स डे के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें उस्तातिज़ा इकराम, तलबा और मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। तलबा ने भी सल्यूट करके अपने टीचर्स को खैराज अकीदत पेश किया। इस वक्त वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा। मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट में। लाजमी आपको बताता चलो कि 5 अक्टूबर का आज दिन है और ये पूरी दुनिया में टीचर डे और सलाम टीचर डे के नाम पे मनाया जाता है। और आज इस वक्त भी गवर्नमेंट हाई स्कूल शोरकोट में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें टीचर्स को सलाम पेश किया। बच्चों ने प्रॉपर सलूट करके अपने असातिज़ा कराम को जो है वो सलाम पेश किया। और मेरे साथ इस वक्त प्रिंसिपल हाजा गजनफर अब्बास काठी साहब भी मौजूद है, जो इस इदारे के प्रिंसिपल है। बाकी टीचर्स भी मौजूद है। यहाँ पे तकरीब से खिताब भी किया गया। मेरे साथ अभी से बताइएगा, आज टीचर्स डे है, बच्चों ने बड़े अकीदत एहतराम के साथ असातिज़ा को सलूट भी पेश किया है। इस दिन के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अक्टूबर जो है सलाम टीचर के हवाले से पूरी वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है और इसमें असातिज़ा कराम को जो है खराज तहसीन पेश किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर कनेक्टेड विद द प्रोफेसर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जो है मुअल्लिम बना के भेजा गया था, तो इस लिहाज से जो है टीचर ऑल रिस्पेक्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये तमाम जो है असातिज़ा कराम को जो है आज 5 अक्टूबर के हवाले से जो है जो दिन मनाया जा रहा है, इसमें जो है बाशमूल हमारे जो नुमाइंदगान प्रेस है वो अपने असातिज़ा कराम को जो है सलूट पेश करते हैं और उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। सर राज साहब, आप भी आज टीचर्स डे में आपने भी खिताब किया, आप बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे टीचर के हवाले से? बच्चों को आज के दिन के हवाले से ये पैगाम है कि वो अपने बड़ों का एहतराम करें। जैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता वो मुझसे नहीं। तो अगर कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत भी करें और बड़ों का, असातिज़ा कराम का, माँ बाप का और मुआशरे के जो बुजुर्ग हैं उनका एहतराम करें। जी बिल्कुल, आज का यही पैगाम है तुलबा को कि अपने वो टीचर्स का एहतराम करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें। कुछ बनना चाहते हैं, अगर वो जो टीचर्स मुस्लिम इंसानियत है, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं मुअल्लिम बन के आया हूँ, जब एक मुअल्लिम का इतना मकाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने आप को मुअल्लिम कहते हैं, कि उस्तादों का कितना एहतराम होगा। आज टीचर को सलाम पेश किया जा रहा है, पूरी दुनिया में असातिज़ा कराम को सलाम पेश किया जा रहा है। शोरकोट में भी आज भरपूर तरीके के साथ इसका एक जो प्रोग्राम भी इनेकाद किया गया, टीचर्स को सलाम पेश किया गया। तुलबा ने स्पेशली खड़े होकर सलूट करके अपने असातिज़ा को सलाम पेश किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया में आज उस्तातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और उस्ताद जैसी अजीम हस्ती को खैराज तहसीन पेश किया जाता है। मजीद इस पर जान लेते
साथ सोनिया मलिक। ओकाड़ा में लेस्को का कंपनी बाग फीडर पर मुश्तरका ऑपरेशन। एक्सीएन ऑपरेशन इंजीनियर मियां तारिक बशीर की जेर निगरानी ऑपरेशन किया गया। कंपनी बाग फीडर ऑपरेशन के दौरान 60 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके लाखों रुपए का जुर्माना भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन में पोलियो मुहिम के दूसरे रोज के दौरान डीएमओस के साथ फील्ड विजिट किए, जिसके बाद आरएचसी बाराको में एरिया इंचार्जेस यूसीएमओस के सब डिवीजन सतह पर एक आरएम ने मजमूई पेशरफ्त का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने इंसदादी पोलियो मुहिम के हवाले से जरूरी हिदायत भी जारी की। सीआईए चौंक के डीएसपी फारूक असगर अवान और टीम की बरवक्त कार्रवाई। लाहौर की सड़कों पर चोरी, डकैती, राहजनी की वारदातें करने वाला एजाज और लंबा साथी हबीब समेत गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिमों के कब्जे से लाखों रुपए, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? देखें, पुलिस ने इजाज उर्फ लंबे को अपने साथी हबीब समेत गिरफ्तार कर लिया है। सीआईए चूंग के डीएसपी की बात करें, फारूक असगर अवान ने एक ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की थी कि मुल्जमान को गिरफ्तार होना ही था। सफेद पारचात में गली मोहल्लों में जो है वो बाकायदा तौर पर रेडी बानों को जो है वो बनाकर अपने पुलिस एहलकारों को इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। डकैती की वारदात भी करता था और मुखबिर खास की जानिब से इतला भी मिली थी कि ये इलाका में जो है वो मुसल्लह होकर आता है, तो इसकी गिरफ्तारी का हुक्म डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक ने दिया था और बाकायदा तौर पर फारूक असगर अवान ने एक जो है वो तरीकाकार अपनाया मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए। मुल्जमान ने जो है वो शहर लाहौर में उधम मचा रखा था, गन पॉइंट पर डकैती की वारदात करते थे, नकबजनी की वारदात करते थे, इसके अलावा राहजनी की वारदातें करते थे। ये इजाज लंबा इंतहाई शातिर था, ये पुलिस एहलकारों के साथ मज़ाहमत भी करता था। जो इसका साथी हबीब है, ये चोरी डकैती करने का बड़ा माहिर था। दोनों मुल्जमान इंतहाई खतरनाक थे और ये लाहौर पुलिस को मतलूब थे। लोकल पुलिस इनको गिरफ्तार जब करने के लिए जाती थी तो ये पुलिस के ऊपर फायरिंग करके उसको डरा देते थे। लेकिन सीआईए, जिस तरह से मैं अमूमन बताता हूँ कि जहां पर लोकल पुलिस की इंफॉर्मेशन खत्म होती है तो वहीं से सीआईए पुलिस की शुरू हो जाती है। तो डीएसपी सीआईए चूंग जो है वो फारूक असगर अवान ने बड़ी जो है वो दीदा दिलेरी के साथ दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार किया। इनके कब्जा से लाखों रुपए जो है वो नकदी भी बरामद की गई है, असला भी बरामद किया गया है, दीगर माल मसरूका बरामद करके इनके खिलाफ जो है वो मुकदमात दीगर थानों में जो दर्ज थे उनकी एफआईआर भी मंगवा ली गई है। दोनों मुल्जमान इंतहाई शातिर, चलाक और ये डकैती की वारदात करने के बड़े माहिर थे जो सीआईए ने इनको गिरफ्तार किया है। अगर देखा जाए तो सीआईए पुलिस जो कोई भी बड़ा टारगेट मिलता है इनको डीआईजी की जानिब से उनको फौरी तौर पर चेज करती है और मुल्जमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। तो इसी पर जो है वो डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक ने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया था कि मुल्जमान को गिरफ्तार करें ताकि चोरी डकैती और राजनी की वारदातों में कमी आ सके। और पुलिस ने जब से इन दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार किया, इलाके में बड़ा अमन मान है और लाहौर के शहरियों ने खासकर फारूक असगर अवान, डीएसपी सीआईए चूंग और डीआईजी सीआईए लियाकत अली मलिक का शुक्रिया अदा किया कि ऐसे दरिंदा सिर्फ इंसानों को जो है वो गिरफ्तार किया जो ना लोगों की हलाल की कमाई देखते हैं। बाकायदा तौर पर ये खवातीन और बच्चे, बूढ़ों, जवानों से भी जो है वो गन पॉइंट पर मोटरसाइकिलें, जेवरात व दीगर नकदी छीन कर फरार हो जाते थे। इनको किसी का कोई तरस नहीं था, ना खुदा का कोई खौफ था। जब मेरी बात हुई थी डीएसपी सीआईए चूंग से तो उनका कहना था मुल्जमान को जब गिरफ्तार किया गया, मुल्जमान के कब्जा से असलहा भी बरामद किया गया है, दीगर माल मसरूका, नकदी और जो है वो दीगर माल मसरूका भी बरामद किया गया है। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की दूसरी सालाना इनोवेशन एक्सपो 20 नवंबर को एक्सपो सेंटर में होगी। एचईसी पंजाब के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर की जेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में एक्सपो के इनेकाद का फैसला किया गया है।
एक्सपो में 500 तहकीकाती प्रोजेक्ट और मॉडल्स भी पेश किए जाएंगे। इसी पर मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर कामरान अली की इस रिपोर्ट में। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की दूसरी सालाना इनोवेशन एक्सपो 2023 20 नवंबर को एक्सपो सेंटर में मुनक्किद कराने का ऐलान कर दिया गया। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा, एक्सपो की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला किया गया है कि एक्सपो में 500 तहकीकाती प्रोजेक्ट और मॉडल पेश किए जाएंगे। इनोवेशन एक्सपो 2023 का मकसद जामियात में होने वाली रिसर्च की हौसला अफजाई करना है। रिसर्च प्रोजेक्ट मॉडल्स के मुकाबले में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात में इनामात दिए जाएंगे। पंजाब की तमाम तर जामियात एक्सपो में हिस्सा लेंगी। पंजाब की 11 यूनिवर्सिटी एक्सपो में 2023 की पार्टनर्स होगी। डॉक्टर मंसूर बलोच एक्सपो की ऑर्गेनाइज कमेटी के सरबराह होंगे। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में डॉक्टर मंसूर बलोच, डॉक्टर आसिफ मुनीर, डॉक्टर तनवीर कासिम, नुमान राव की शिरकत। इजलास में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रेक्टर, डायरेक्टर्स डॉक्टर सुलेमान ताहिर, डॉक्टर अशरफ, डॉक्टर खलीकुर रहमान, डॉक्टर शगुफ्ता नाज, डॉक्टर नजमुल हक, डॉक्टर आबिद शेरवानी, डॉक्टर कैसुज़्ज़मा, डॉक्टर समिया हामिद की शिरकत। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की दूसरी पाकिस्तान के हैंडमेड कारपेट की एक्सपोर्ट के फरोग के लिए 29वें पाकिस्तान इंटरनेशनल हैंडमेड कारपेट की नुमाइश लाहौर के मकामी होटल में शुरू हो गई है। ये नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। नुमाइश देखने के लिए पाकिस्तान के अलावा अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक से गैर मुल्की अफराद भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। नुमाइश का इफ्तिताह ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुबैर मोतीवाला ने किया है। इस वक्त अली फारूक मलिक वहां पर मौजूद है। मजीद तफसीलात इस नुमाइश के हवाले से उनसे जानते हैं। जी अली फारूक जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ पीसी होटल में, जहाँ कारपेट एसोसिएशन की तरफ से ये नुमाइश है और हमारे साथ CEO TDAP मौजूद हैं जुबैर मोतीवाला। उनसे पूछते हैं, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, ये सूरत हाल जो अभी बनी है, ये आपने अभी कोशिश की है आपकी तरफ से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, क्या इकदाम किए जा रहे हैं कारपेट? देखिए, हमने जो है ये अभी इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इसमें हम काम कर रहे हैं कि किसी तरह से भी किसी भी सेक्टर का कहीं एक्सपोर्ट कम हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, कहीं हम बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके नतीजे में हमने सपोर्ट किया है इस एग्जीबिशन के अंदर, ताकि बाहर से डिग्नेटरीज आएँ। वही जो $300 मिलियन तक एक्सपोर्ट होता था, अभी 72 पे पहुँच गया। हमने इसको टारगेट किया है और इसको हम इंशाअल्लाह ताला उसकी अपनी वापस 300 पे ले जाके फिर 1 बिलियन तक का हमारा टारगेट है। तो हम इनको कंटिन्यूस सपोर्ट करते रहेंगे। अभी भी हमने उनको ऑफर किया इजिप्ट की सिंगल कंट्री एग्जीबिशन में आए, फिर डेवोटेक्स के अंदर ये जाते हैं, उसके अंदर भी हमने उनको स्टॉल्स बढ़ा दिए हैं। हम पीछे खड़े हैं। इस वक्त हमने फैसला किया हुआ है कि हैंड नोटेड कारपेट को प्रमोट करना है पाकिस्तान से, उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। अच्छा सर, ये जिस टाइम सूरत हाल बनी, डॉलर अब ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, ये निगरान हुकूमत के बड़े अच्छे इकदाम हैं, जो आर्मी चीफ की ज़ेर निगरानी भी चल रहा है ऑपरेशन, इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि डॉलर जो वहाँ पहुँचा था, उसके कई बहुत वजूहत थी जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर उन वजूहत को जब हम निकालते हैं और जब उसके पास हम सारी चीज़ें देखते हैं, तो डॉलर को अपनी एक रियलिस्टिक वैल्यू पे रुपी टू $1 आना था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज आ रहा है। और मैं समझता हूँ इसको 280 रुपये और 275 रुपये के दरमियान इसको होना चाहिए और ये हो जाएगा। अब इसको होने के अंदर जो और दूसरा सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया है फौज ने SIFC का, वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो ये स्पेशल इनिशिएटिव्स जो हैं, इसके अंदर उन्होंने सारी जो है ना सिस्टम को निकाल कर वन विंडो ऑपरेशन जो है ना GHQ में किया है। एग्रीकल्चर के ऊपर, IT के ऊपर, माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स भी बाहर से आने की बातें हैं, जो बातें कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला पूरी होंगी। सऊदीया और UAE से उनके कमिटमेंट्स भी हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए जो है खुशाइन बात है और इंशाल्लाह ताला चीज़ें आगे बढ़ेंगी। थैंक यू सो मच। ये नाज़रीन जुबैर मोतीवाला साहब की गुफ्तगू थी, जिसमें उन्होंने वाज़ह किया है कि जी डिप्रेशन में नहीं आना, ये मुश्किल वक्त है पाकिस्तान का निकल जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद की खसूसी हिदायत पर स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की कार्रवाइयां जारी हैं। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट और नाकिस ईंधन इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर ने गुज़श्ता माह 16,000 से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 81,46,000 रुपए के चालान टिकट जारी किए, जबकि खतरनाक हद तक धुआं छोड़ने वाली 1904 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में भी बंद करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में कार्रवाइयों के दौरान 3600 से ज्यादा धुआं देने वाली गाड़ियों को चालान, जबकि
खतरनाक हद तक फिजाई आलूदगी का सबब बनने वाली 1904 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आसमान को छूती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रखी है। अवाम आए रोज बढ़ती कीमतों से आजिज आ चुके हैं। मंसूरा में बिजली के बिलों पर इजाफी टैक्स और बढ़ती हुई महंगाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह की लाहौर हेड ऑफिस मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिराजुल्लाह का कहना था बिजली महंगी करने की बजाय मुराद देने वालों की बिजली बंद की जाए। 550 अरब से ज्यादा बिजली चोरी होती है। एक पाकिस्तानी 5 बिजली चोरों का बोझ बर्दाश्त करता है। नए मीटर लगाने लगे हैं जो मोटरवे की स्पीड से ज्यादा तेज चलते हैं। 8.7 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा पाकिस्तानियों की जेब से निकला। हिसाब किया जाए, हम आज भी 50 साल दौर में सांस ले रहे हैं। अवाम को रिलीफ देने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। PIA या कौमी अदारे फरोख्त की बजाय करप्शन कंट्रोल क्यों नहीं करते? करप्शन पर हाथ डालने की बजाय अवाम को फरोख्त करना आसान समझते हैं। आलमी अदारों से कर्जे हमारे हाल और मुस्तकबिल को खराब कर देंगे। अब दाल रोटी भी गरीब आदमी को पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। इलेक्शन ऐसा चाहते हैं जो डेकोरेशन की बजाय अवाम पर मबनी हो। इंतखाब में हकीकी तौर पर अवाम को इख्तियार दिया जाए। शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी का कहा, लेकिन अब अहम मौजूद है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि तारीख का ऐलान करें। सर्दी गर्मी का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी का कहते हैं। इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता सिर्फ इलेक्शन है। 6 अक्टूबर से गवर्नर हाउस सिंध के बाहर धरना दे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर पंजाब भर में गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता माह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीमों ने कितने बेकारियों को अपनी तहवील में लिया है, इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता माह सितंबर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीमों ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें ठोकर, समनाबाद, रेलवे स्टेशन, गड़ी शाहू, इकबाल टाउन, कैंपस पुल, गुलबर्ग मेन मार्केट, जोहर टाउन, डिफेंस, बरकत मार्केट, करीम ब्लॉक मार्केट, मून मार्केट, शादमान, शाहदरा, दाता दरबार और दीगर इलाकों से भीख मांगते 127 भिखारी बच्चों को अपनी तहवील में लिया है, जबकि पंजाब भर में गुज़श्ता माह के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जली दफातर में रेस्क्यू टीमों ने 602 भिखारी बच्चों को अपनी तहवील में लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीमें रोजाना की बुनियाद पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का भिखारी बच्चों के बारे में टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज होने पर हफ्ता और एतवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंसदादे गदागरी मुहिम के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की रेस्क्यू टीमों की जानिब से किए जाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन लाहौर समेत पंजाब भर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तमाम जली दफातर में किए जा रहे हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर गदागरी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के माली साल 2023-24 के बजट के साथ साथ नए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तालीमी प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर उर्दू जुबान और सकाफत में तहकीक के लिए अजरबैजान उर्दू रिसर्च सेंटर, पॉलिटिकल साइंस और गवर्नेंस स्टडीज में तहकीक को फरोग देने के लिए जावेद अहमद शेख सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस बाबा गुरु नानक चेयर और यूथ डेवलपमेंट सेंटर के कयाम की मंजूरी दे दी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने सिंडिकेट के 59वें इजलास की सदारत की। इजलास में महकमा कानून, महकमा हायर एजुकेशन और महकमा खजाना के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर सिंडिकेट मेंबरान ने यूनिवर्सिटी और सिंडिकेट के मामलात को बेहतरीन और ईमानदारी के साथ चलाने पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जावेद जैदी की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने बताया कि 3 एंडोमेंट फंड्स का कयाम भी किया गया है जिनमें 62 मिलियन रुपए की रकम से
सलाम चेयर एंडोनमेंट फंड 32 मिलियन रुपए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाइना स्टडीज एंडोनमेंट फंड और इसके अलावा GCCU का सेल्फ सेविंग एंडोनमेंट फंड भी शामिल है। उनका कहना था कि इजलास में GC यूनिवर्सिटी की तालीमी कारकर्दगी को बरकरार रखने और रिसर्च में इजाफे के लिए जरूरी वसाइल मख्तस करने के फैसलों पर अमल दरामद से यूनिवर्सिटी की मजमूई कारकर्दगी में मजीद इजाफा होगा। कमिश्नर लाहौर DGLDA के रात गए शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के दौरे। मोहम्मद अली रंधावा ने ज़ेरे तामीर शाहतरा फ्लाईओवर मंसूबे और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया अंडरपास का मुआयना किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद कॉन्ट्रैक्टर और साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट टीम ने ब्रीफिंग में बताया कि शाहतरा फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 90% काम मुकम्मल हो गया है। इससे रवा माह खोल दिया जाएगा। फ्लाईओवर के दोनों पुलों पर काम तकमील के करीब पहुंच चुका है। इलेक्ट्रिक पोल्स की फिक्सिंग का काम भी जारी है। कमिश्नर ने अहदाफ के मुताबिक डेडलाइन का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास भी तकमील की जानिब तेजी से गामजन है। इंतजामी गफलत के बायस हर साल बारिशों के दौरान कई तामीरात मलबे का ढेर बन जाती हैं। लाहौर में तकरीबन 1500 के करीब तामीरात खस्ताहाली का शिकार हैं। मजीद जानते हैं आयान मलिक की इस रिपोर्ट में। DG वाल सिटी ने इंतहाई हसास करार पाई जाने वाली 60 से 70 इमारत को फौरी गिराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि अंदरून लाहौर में 900 के करीब इमारतों की मुरम्मत के लिए भी नोटिस जारी हो चुके हैं, जिनमें से मुतअद्दिद तामीरात की मुरम्मत का काम जारी है। अंदरून शहर में रहने वाले शहरियों का कहना है कि हर साल बारिशों के महीने में वाल सिटी इंतजामिया की तवज्जो मखदूश इमारतों की जानिब दिलवाई जाती है। अकाम नोटिस जारी कर देते हैं कि घर गिराना पड़ेगा। अंदरून लाहौर के बाहर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के जेर इंतजाम शहर के 9 जोन में 129 खस्ताहाल इमारतें मौजूद हैं। सबसे ज्यादा खस्ताहाल इमारत जो कि दाता गंजबख्श टाउन में मौजूद हैं, 25 गुलबर्ग जोन में और दीगर जो है मुख्तलिफ जोन में मौजूद हैं। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर के मुताबिक रवां साल शहर के 9 जोन में 36 खस्ताहाल इमारतों को गिरा दिया गया। 48 इमारतों की मुरम्मत और रिपेयरिंग का काम जारी है। दीगर इमारतों के वकीलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन नुमान के साथ अयान मलिक, कोहिनूर न्यूज लाहौर। DG पंजाब पुलिस का खतरनाक इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से मज़ीद 4 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रवां बरस बैरून मुल्क से गिरफ्तार होने वाले इश्तिहारी मुजरिमान की मजमूई तादाद 122 हो गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारियों इमानत अली को सऊदी अरब, मसूद हुसैन को मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार किया गया है। चोरी केस में मतलूब इश्तिहारी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद उमर शहजाद भी मुत्तहिदा अरब अमारात से गिरफ्तार किए गए हैं। चारों मुलजमान वारदातों के इर्तिकाब के बाद बैरून मुल्क फरार हो गए थे। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल की मदद से मुलजमान के रेड नोटिस जारी करवाए। गिरफ्तारियों के लिए मुसलसल फॉलो अप भी जारी रखा। चारों इश्तिहारी बिलाखिर गिरफ्तार होकर पाकिस्तान पहुंचा दिए गए हैं। मजीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इजलास की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। IG पंजाब का कहना था कि कानूनी मराहिल जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुजरिमान को वाकई सजा दिलवाई जाएगी। स्टार पैक आलमी मुकाबला, UET ने 6 तमगे दुनिया भर में चौथी पोजीशन हासिल कर ली। UET ने मजमूई तौर पर 1 तलाई तमगा, 3 चांदी के तमगे जबकि 2 खसूसी अवार्ड भी हासिल किए हैं। वाइस चांसलर की डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन की टीम और असातिज़ा को मुबारकबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन के तलबा और तालिबात ने स्टार पैक आलमी मुकाबले में 6 तमगे अपने नाम करके दुनिया की जामियात में चौथी पोजीशन हासिल कर ली है। डिपार्टमेंट की तलबा हाजरा अख्तर और शहरुल सयात ने स्पॉन्सर्ड गोल्ड मेडल, लाइबा हमीद और हादिया मरियम करीम और जोहा कदीर और महनूर अनवर ने चांदी के तमगे हासिल किए।
इसी तरह सानिया खान और एशिया रफी को खसूसी अवार्ड, जबकि खतीजा और हादिया ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान, चेयरमैन PID डॉक्टर आतिफ बिलाल असलम, फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की है। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग की सरबराही में जूम के जरिए इजला के CTOs और DTOs से इजलास में SP हेडक्वार्टर रिफत हैदर बुखारी, ADC IG वहीदुर रहमान और दीगर सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने तमाम इजला के ट्रैफिक इंतजामात और लाइसेंसिंग कारकर्दगी का जायजा लिया। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने अच्छी कारकर्दगी पर गुजरांवाला, लाहौर, भक्खर और बहावल नगर के अफसरान को शाबाश दी, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर जहलम, विहाड़ी, शेखुपुरा की नाकिस कारकर्दगी पर सरजनिश करते हुए वार्निंग भी जारी की। एडिशनल IG ट्रैफिक की तरफ से दीगर अजला के अफसरान को कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से अहकाम जारी करते हुए उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के बाद तमाम अजला की कारकर्दगी को दोबारा चेक किया जाएगा। लॉ एनफोर्समेंट व ट्रैफिक की बिला रुकावट रवानी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के हुक्म और SP सिटी सुलेमान जफर की हिदायत पर SHO मस्ती गेट असलम शफीक की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान SHO मस्ती गेट ने अपनी टीम के हमरा मुखबर खास की इतला पर असलहा से भारी गाड़ी कब्जे में ले ली, जबकि एक मुलजिम नूर आलम पठान को हिरासत में भी लिया है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। SHO मस्ती गेट के मुताबिक गाड़ी से करोड़ों रुपए मालियत का जदीद ऑटोमेटिक असलहा, जिनमें गोलियां, कारतूस, मैगजीन भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मौके पर कोई इजाजतनामा या लाइसेंस पेश न कर सका, जिसके खिलाफ लाहौर पुलिस की SOPs को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के हुक्म और SP सिटी सुलेमान जफर की हिदायत पर SHO मस्ती गेट असलम शफी की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान SHO मस्ती गेट ने अपनी टीम के हमरा मुखबर खास की इतला पर असलहे से भरी गाड़ी को कब्जे में ले लिया, जबकि एक मुलजिम नूर आलम पठान को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। SHO मस्ती गेट के मुताबिक गाड़ी से करोड़ों रुपए मालियत का जदीद ऑटोमेटिक असलहा, जिसमें गोलियां, कारतूस, मैगजीन भी बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मौके पे कोई इजाजतनामा या लाइसेंस पेश न कर सके। आपको बताएं अहम कार्रवाई सामने आई है, जहां DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी के हुक्म और SP सिटी सुलेमान जफर की हिदायत पर SHO मस्ती गेट असलम शफीक की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों के दौरान SHO मस्ती गेट ने अपनी टीम के हमरा मुखबर खास की इतला पर असलहे से भरी गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीके इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी है। सियासी जमातों की जानिब से बल्दियाती काउंसलर्स को जारी तमाम नोटिस भी मनसूख कर दिए गए। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए बल्दियाती काउंसलर्स की दरख्वास्तों पर तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी करार दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीके इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया है। सियासी जमातों की जानिब से बल्दियाती काउंसलर्स को जारी तमाम नोटिस भी मनसूख कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर
उमर अवैस गुरदेजी मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, आजाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानब से एक अहम डेवलपमेंट जो है आज सामने आई है। एक बड़ा फैसला सामने आया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं थी, आर्मी तौर पर रजिस्टर्ड जमातें थी, उनकी जो आर्मी रजिस्ट्रेशन थी वो मनसूख कर दी है। जबकि सियासी जमातों की जानब से बलदियाती काउंसिलर को जारी जो नोटिस थे बलदियाती इंतखाबात में वो भी सब मनसूख कर दिए जा चुके हैं। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने जब बड़ा फैसला सुनाया और बलदियाती काउंसिलर की दरख्वास्तों पर तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन को गैर कानूनी करार दिया। ये इसके हवाले से एक दरख्वास्त गुजार से उन्होंने दरख्वास्त दी गई थी कि तहरीक इंसाफ के सदर रहे जो अब्दुल कयूम खान नियाजी, उनकी जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे बलदियाती नुमाइंदे, उन्हें जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे सरदार तनवीर इलियास खान, उनका साथ न देने पर नोटिस जारी किए गए थे कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर होकर आप दूसरी जमात को सपोर्ट करें या फिर एक ऐसे बंदे को सपोर्ट करें जो कि जमात छोड़ चुके हैं। उसके बाद ये केस अदालत में गया था। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि आजाद कश्मीर की सियासी जमातों ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर काउंसिलर को जो नोटिस जारी किए थे, जिसके खिलाफ काउंसिलर ने आजाद कश्मीर हाईकोर्ट में दरख्वास्तें दायर की हुई थी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ पेश किया था कि सियासी जमातें काउंसिलर को नोटिस जारी नहीं कर सकती। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने सियासी जमातों के बलदियाती काउंसिलर को जारी तमाम नोटिस भी मनसूख कर दिए, जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई समेत तमाम जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख करते हुए रिमार्क दिए कि इलेक्शन कमीशन आइन के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकता। अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को पूरी रजिस्ट्रेशन दी थी, जबकि पूरी रजिस्ट्रेशन का आइन में कोई खबर मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख कर दी जाती है। जी बहुत शुक्रिया उमर अवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहे